Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I'm Madhulika. Today is 24th December and today is Sunday, so we'll be dealing with the magazine. So I have an article from the Kurukshetra which is talking about your Atmanirbhar Gaon. What are its goals? What are the challenges? What are the problems? Why it is in news or what the urbanization is having relationship with the village existence, what are villages playing a role in the total economic development, what are the challenges we are facing regarding urbanization or even with the rural areas, how is village contributing or how is village important regarding all round development or the economic prosperity. We'll also be dealing with some of the revival of village institutions. This is one of the headlines we will be dealing with. Then, lastly, we will also be coming about the development of Atmanirbhar Gaon. What are the pros, cons, and how we will deal with all those things. So, before I jump into the article, I would like to give you a brief introduction and read out the topic. It is telling towards the goal of Atmanirbhar Gaon. So, what it is all about here? It is a brief summary, and we could go with this. Atmanirbhar Gaon is a movement of the people. The success of a people-centric program can only be expected by engaging with the communities. Under the Unnat Bharat Abhiyan, the task of providing knowledge and technological support involving higher educational institutions was taken up by subject experts with the objectives of involving livelihood. The realization of Atmanirbhar Gaon requires conviction that the revolution of purpose in India is possible only when villages lead the movement. So you must have got the clarity from this कि इसमें बोला जा रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत है तभी हो पाएगा जब गांव आत्मनिर्भर होगा, जब people will lead the movement, when we talk about the democracy, it is all round people, especially we forget the people of the village. गांव के लोगों को हम लोग भूल जाते हैं, पर हम लोग को हमारे जैसे भारत में जहाँ पे मोस्टली रूरल पॉपुलेशन है, हमारे गांव को ज़्यादा हम लोग को एनरिच करना चाहिए. पीपल सेंट्रिक मतलब पीपल से केंद्रित प्रोग्राम, पीपल के हित में लाने वाला प्रोग्राम प्रावधान लाना चाहिए. इसी से कम्युनिटीज़ का इंगेजमेंट होगा, पीपल का इंगेजमेंट होगा, मतलब एक साथ मिलेगी पीपल, उनके प्रॉब्लम्स उनके सल्यूशंस को लाया जाएगा और फिर ही हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे. तो ये जो उन्नत भारत अभियान है, ये एक टास्क है फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इम्प्रूविंग लाइवलीहुड. ये सब इस प्रोग्राम के अंदर आता है. इसके अलावा इसमें बोला जाता है कि अगर आप लोगों को एक आत्मनिर्भर गांव जैसा कुछ लाना हो या फिर गांव को आत्मनिर्भर करना होगा तो ही एक रिवॉल्यूशन हो सकता है या फिर एक बदलाव देखा जा सकता है इंडिया के ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी में. और ये तभी होगा जब विलेजेस ये मूवमेंट को लीड करेंगे. विलेजेस या विलेजर्स वही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे या उनके लिए कुछ किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रूरल पॉपुलेशन हमारे में बहुत है. तो अगर हम इन्हीं को सबसे पहले ठीक नहीं करेंगे तो क्या हमारा देश इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर हो पाएगा. Let us now read the article. The enriching heritage of India defines its identity. Material and non-material culture are the true reflection of the heritage. The unity in diversity is the strength, and the harmonious coexistence of cultural diversity within the nation of India is its magnificence. India is blessed to have this unique character which is still preserved and practiced in the village. If this is so, then the essence of India lies in its villages, and instant rejection of contrary view is a instinct of the Indians. Obviously, connecting with villages is beyond a simple emotional affinity, and tangible value associated with it must be the reason enough for the community of this essence of India to exist. Sir Charles referred to Indian village community as little republics in possession of everything their need their needs and desire, but they were
not isolated from the rest of the world. He further goes on to attribute happiness, enjoyment, freedom, and independence of Indian people to village communities. The essence of India was underlined by Gandhi's as we are inheritors of the rural civilization. Thus, the significance of village is far greater than the physical entities such as the built environment and the land associated with it. At the dawn of independence in 1947, over 85% of the Indian population lived in villages and derived their livelihood from agricultural economy. Needless to say, sufficient self sufficiency was the core of this structure. Gandhi was empathetic on the significance of village in the development of India and supported the idea of supplementary industry for the villages. So इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, इसमें पैराग्राफ में विलेजेस का इम्पोर्टेंस बताया गया है और विलेजेस को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, इनको इनकी तरफ हमारा आउटलुक कैसे होना चाहिए, कैसे इन्हें फेवर करना चाहिए। ये दो थ्योरी को हम लोग को लिया गया है, एक सर चार्ल्स ये एक्सपर्ट है उनके द्वारा और एक गांधी का व्यू पॉइंट दिखाया गया। तो वी ऑल नो हाउ मच गांधी टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस, अबाउट विलेजेस, अबाउट रूरल इंडिया या फिर और अबाउट एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर से भरा हुआ इकोनॉमी जैसे हमारा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमारा क्योंकि हमारा एक डाइवर्स इकोनॉमी है, डाइवर्स इंडिया डाइवर्स है, तो हम देख सकते हैं इसमें मेजरली कल्चरल डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं। तो इंडिया की एक यूनिक आइडेंटिटी है और इसको प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली इन विलेज वी कैन सी हाउ विलेज इन टुडेज टाइम आर नॉट गिवन सो मच वैल्यू, इट्स एसेंस इज़ बीइंग लॉस्ट। अगर हम लोग विलेजेस में ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश का ग्रोथ कैसे होगा, ओवरऑल आत्मनिर्भर कैसे होगा। इसके अलावा विलेजेस है उससे बहुत हमारा इमोशनल एफिनिटी या इमोशनल कनेक्शन है। इसके अलावा जो वैल्यूज़ वहाँ से एसोसिएटेड है, ये कम्युनिटी का जो एसेंस है वो हमारे इंडिया या हमारे भारत के कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो एक्सपर्ट है सर चार्ल्स, उनका कहने का है ए विलेज कम्युनिटी एक स्मॉल रिपब्लिक की तरह होता है। मतलब एक छोटे में अपने में ही उनका एक छोटा सा देश है या फिर अपने में एक छोटा सा ग्रुप है। प्लस वो ये भी बोलते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशन, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये कैसे इंडियन पीपल के लिए या विलेज कम्युनिटी के लिए वो एसोसिएटेड है। इसके अलावा गांधी जी का व्यू पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नोट डाउन भी कर सकते हैं। ही सेज दैट वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ रूरल सिविलाइजेशन। इनहेरिटर क्या होता है, हम लोग जो भी है आज रूरल पॉपुलेशन की वजह से हमारा देश शुरू हुआ था रूरल एरिया से और आज के टाइम में वो पहुँच गया अर्बन एरियाज में विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा बोलते हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज इज़ फार ग्रेटर। हम लोग जो सिग्निफिकेंस को भूल रहे हैं कि वो क्या कंट्रीब्यूशन किया, हम लोग का ग्रोथ यहाँ बेसिक स्टेप से हुआ है विलेजेस या रूरल कम्युनिटी या रूरल सिविलाइजेशन से, वो हम लोग भूल जा रहे हैं। हम लोग कैसे हमारे धरती से जुड़े हैं वह भी हम लोग भूल जा रहे हैं। इनफैक्ट जब इंडिपेंडेंस के टाइम अगर हम लोग देखें, जब इंडिपेंडेंस देश आज़ाद हो रहा था तो हमारा 85% पॉपुलेशन मतलब हमारा देश का मैक्सिमम पॉपुलेशन वो विलेजेस में रहता था और हमारा लाइवलीहुड या फिर हमारा इकोनॉमी वहीं से डेवलप्ड होता है। तो विलेजेस हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू दी ओवरऑल डेवलपमेंट। आज विलेजेस हैं ही तो ही हमारा अर्बन इकोनॉमी भी है। अगर विलेजेस नहीं होते, इनका रॉ मटेरियल नहीं देता है तो शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होता ना अर्बनाइजेशन होता। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब कैसे इंटरलिंक्ड है पूरे इकोनॉमिक वर्ल्ड के लिए। इनके बाद गांधी जी का ये भी कहना है कि एम्पैथेटिक रहिए आप विलेज कम्युनिटी की तरफ, इसी से इंडिया एक सही मात्रा में इंडिपेंडेंट हो सकता है। इनके आइडियाज़ को प्रमोट कीजिए, एक इंडस्ट्री बनाइए जहाँ विलेजेस में भी कंट्रीब्यूशन हो। नेक्स्ट, the Gandhian view centers on self-sufficient community and the balance between man and nature. Thus, the self-sufficient village as an economic unit is an obvious catalyst for environmental sustainability. In this context, a temporary environmental crisis, the Atmanirbhar Gaon is a undeniable solution. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, गांधी का व्यू पॉइंट दिखाया जा रहा है कि वो बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर या पूरी तरह से एक ऐसा विलेज बनाया जाए, एक ऐसा कम्युनिटी बनाया जाए जहाँ नेचर और मैन पे एक प्रॉपर बैलेंस हो। नेचर मतलब आपका जो भी हो, ग्राउंड से रिलेटेड, धरती से रिलेटेड या रूरल एरियाज़ है उससे रिलेटेड, और एक पर्सन का प्रॉपर कनेक्शन या बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा
विलेज सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर हो पाएगा। इसके अलावा ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? एनीथिंग विच आर स्पीड्स अप, तो इट विल स्पीड अप दी, what it will speed up, it will speed up the goals of sustainable development और environmental goals। इसके अलावा इसी इसी कंटेक्स्ट में आत्मनिर्भर गांव का एक अनडिनाइबल सोल्यूशन बताया गया है कि हम लोग इग्नोर कैसे कर सकते हैं अपने गांव को जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। नेक्स्ट, paradox of urbanization, vis a vis village existence। what is the meaning of vis a vis? means in relation to तो कैसे रिलेटेड है हमारा अर्बनाइजेशन विलेज के एग्जिस्टेंस से, क्योंकि विलेज है इसीलिए अर्बन टाउन से, ये देखते हैं हम लोग। रैपिड अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू द एग्जिस्टिंग क्राइसिस ऑफ विलेज। अकॉर्डिंग टू द एन एस्टिमेट इन 2021, 1/3 of the Indian population live in city and the growth is unabated. Urban areas are known to be engines of economic prosperity, but the development model based on urbanization will have a declining dividend unless it consumes more rural space. The paradox is that insatiable consumption will lead to prosperity in GDP terms, but what happens to the environment if the village perish? The notion of self-reliant city is still a conjecture as a model for catering to magnitude of demand of resource including vegetables and other natural products is still a rather hypothetical one. To heal the devastation of the environmental caused by urbanization by its internal mechanism is not even an injection yet। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर आज के टाइम पे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन क्या होता है कि हम लोग जो शहर में रहते हैं, अर्बन टाउन में रहते हैं, उसको अर्बनाइजेशन, या फिर शहर का जो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है उसको अर्बनाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तो इसके आज अगर वो एग्जिस्ट करता है या उसको लीड करता है, अर्बनाइजेशन इतना डेवलप कर रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? वो विलेजेस के एग्जिस्टेंस से ही हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि विलेज के एग्जिस्टेंस से अर्बनाइजेशन हो रहा है? मतलब कि देखिए विलेज है तो विलेज क्या करती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। वी ऑल नो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि कौन विलेजेस प्रोवाइड करती है किसको? इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री क्या होगा? रॉ मटेरियल से जो भी प्रोडक्शन करेंगे, तो जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जहाँ इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ लोग की ज़रूरत है, वो जॉब्स मिलेगा और फाइनली वहाँ अर्बनाइजेशन जैसा सिनेरियो बनता है। दैट इज़ वाई इट इज़ टेलिंग हाउ इट इज़ इंटरलिंक। तो एक एस्टिमेट बताएगा 2021 का, उसमें 1/3 जो पॉपुलेशन हमारा देश का वो अर्बन एरियाज़ में रहता है, यानी सिटीज़ में रहता है, और उनका ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है अनबेटेड। अनबेटेड मतलब उनका ग्रोथ रुक नहीं रहा है। प्लस अर्बन एरियाज़ आर नोन एज इंजिन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और जो भी उनका डेवलपमेंट होते जा रहा है उनका वो होते जा रहा है, वो क्या होते जा रहा है? एक रूरल स्पेस को कंज्यूम कर रहा है। रूरल स्पेस को कंज्यूम कर रहा है मतलब कि अगर मान लीजिए ये हमारा देश, हमारा इंडिया, अगर इतने लोग रूरल एरियाज़ में हैं और इतने अर्बन एरिया में हैं, तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ये ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ का जगह, और रूरल एरिया क्या होता है आपका कम पड़ते जा रहा है। तो यही है इसमें कहने का मतलब है। तो द पैराडॉक्स इज दैट द insatiable consumption of consumption, it will lead to the prosperity in GDP terms, but what happened to the environment if the village perish? अगर विलेजेस नहीं रहा, उनका एग्जिस्टेंस हटा दिया गया, तो इन्वायरमेंट को क्या होगा, क्या दिक्कत आ जाएगा? तो पहले चीज़ तो हम लोग जानते हैं जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है तो मतलब यानी पे इंडस्ट्रीज़ भी बन रहा है, इसीलिए वहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को क्या होगा? बहुत लॉस होगा, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा खतरा है। हालांकि अगर विलेज रहेगा तो मतलब वो नेचर है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट का एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग सेल्फ रिलायंस का बात करें, सो लेट मी रीड आउट हियर। सेल्फ रिलायंस बिल्ड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेंसी ऑफ अ habitational to at least meet its necessary of good and maintain environmental sustainability within its own footprints of existence, including the associated communities. The autonomy so achieved in the sense is a sense of pride leading to social cohesion.
Unfortunately, globalization and subsequent urbanization may have realized this limitation rather late, even if it has. तो इसमें बोल रहा है अगर हम लोग सेल्फ रिलायंट बनना है, विलेजेस को बनाना है, तो क्या होगा? एक प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, कम्युनिटीज़ को एक साथ वर्क करना चाहिए, एक ऑटोनॉमी होना चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब क्या होगा? पीपल के हिसाब से, मतलब फ्री इकोनॉमी होना चाहिए, फ्री सोच, फ्री ओपननेस वैसा होना चाहिए। उसके अलावा अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल इकोनॉमी, वी से ना द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब क्या होता है आज के टाइम पे इकोनॉमी खुला है कि कोई भी शहर दूसरे शहर में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। जैसे इंडियन मार्केट है या इंडियन इकोनॉमी है, वो क्या करती है अपना, हमारा ओपन इकोनॉमी है। अगर ओपन इकोनॉमी क्या होगा, दूसरे शहर के लोग आके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बना सकते हैं, हम लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। सो दैट इज़ लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन। So it is talking that here the concept of self-reliance may not find solid ground in urban cities, as the newer generations are finding the bigger city life increasing and attractive. With the hope of better career opportunity and an optimism for growth, the youth of villages are rapidly migrating to urban centers. While it may be true for some, more end up living a life or drudgery and sustaining themselves at the threshold of existence. The realization of the value of village life in such case comes at a time when becomes migrating back may not be an easy decision. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कैसे माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन मतलब क्या होता है? पीपल फ्रॉम रूरल एरिया शिफ्ट टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये होता है माइग्रेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं अर्बन सिटीज़, इट इज़ बिकमिंग बिग सिटी लाइफ। मतलब अर्बन सिटीज़ बढ़ते जा रहा है, रूरल एरियाज़ डिक्लाइन हो रहा है, रूरल स्पेस क्यों हो रहा है? क्योंकि पीपल वांट टू गो टू रूरल एरियाज़, मतलब अर्बन एरिया, शहर में लोग आना चाहते हैं गांव छोड़ के, ताकि वो काम ढूंढ सके, उनका ग्रोथ हो सके। और इससे क्या होगा? अर्बन सेंटर्स बड़ा होते जा रहा है। इसके अलावा बहुत लोग इसमें इस इन्वायरमेंट में सस्टेन करना, यानी इस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेना डिफ़िकल्ट समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग देख सकते हैं कि गाँव के लोग आए यहाँ पे काम करने, वो लोग कैसे स्लम एरिया में रहते हैं, किस तरह वो स्लम्स में रहते हैं, घटिया एरिया में जहाँ बीमारी हो सकता है, वैसे में वो सस्टेन नहीं कर पाते अपने आप को। तो और उसमें उनको ये भी रियलाइज़ हो जाए कि वो वापस माइग्रेट बैक नहीं कर सकते अपने गाँव में, क्योंकि वो ईज़ी डिसीजन नहीं होगा। Next, on the other hand, a village as a unit of human existence has all the potentiality to qualify as a self-sufficient, self-reliant entity. The paradox is that the inevitability of urbanization at some point of development in the past overlooked the relevance of village as an important unit. As we experience degradation of the urban environment and loss of quality of life due to pressure on resources and social structure, there are going realizations that village are only valid option for human existence. We can forget the days of COVID-19 pandemic when mass exodus to native villages was the only hope for survival and existence. In few days, the engines of economic growth had no resilience to cater to the material needs of people or provide emotional support in the face of life-threatening virus, and villages indeed rendered the necessary care to the people, and we saw the environmental bounce back to the glory in a short time. At the time of crisis, PM Narendra Modi called upon the nation to work towards Atmanirbhar Bharat, supplemented by Atmanirbhar Gaon resolution. Thus, COVID experience is an opportunity to build conviction, to rein urbanization, to savior the village as Atmanirbhar Gaon. तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कैसे एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे विलेज का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेल्फ सफिशिएंट, ये सेल्फ रिलायंट अपने में ही है। ठीक है,
तो फिर हम लोग इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोविड का एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि कैसे पैंडमिक के समय विलेजेस का हम लोग को इम्पोर्टेंस पता चला है, या वहाँ से हम लोग को कुछ कुछ नुस्खा पता चला है जो कि हेल्पफुल रहा हमारे कोविड पैंडमिक में। उसके अलावा देख सकते हैं कि आज के टाइम पे अगर अर्बन इन्वायरमेंट है, या मौसम या इन्वायरमेंट क्लाइमेट कहीं से भी डिग्रेड करता है, या फिर क्वालिटी का लॉस होता है लाइफ का, तो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑन द विलेज एरियाज। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी उसी कोविड के क्राइसिस के समय आत्मनिर्भर भारत का बात किए थे, विच शुड बी सप्लीमेंटेड या विच शुड बी लीडेड बाय आत्मनिर्भर गाँव। नेक्स्ट, challenges of reigning urbanization. Counter urbanization is defined as demographic and social process where people move from urban areas to rural areas. The concept of counter urbanization builds itself on the reality of deprivation of facilities, amenities, and quality of life in especially inner cities area. Thus, overpopulation is one of the cause what is referred to as shrinking cities. The underlying reason is the capacity of an individual to counter deprivation in terms of affordability. Considering the population of India will reach 170 crore by 200 and to 2050, the dependency on the limited area available for the food grains in Atmanirbhar Bharat would be necessary exponential productivity of agro-based activities. Therefore, the postulation that entrepreneurial opportunity in villages will reign in urbanization is a reasonable hypothesis. The flip side of this hypothesis is that the creation of enterprising human capital in village will reign in migration from rural to urban areas. In either case, the outcome is the same, that is strengthening the village entity, subsequently leading to sustainable environment and living with the pride of cultural heritage. सो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है, व्हाट इज़ काउंटर अर्बनाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन। उसमें क्या होता है ना कि आज के टाइम पे अर्बन एरियाज तो बढ़ रहा है, आप देखिएगा गाँव से लोग आ रहे हैं सिटीज़ और वहाँ पे काम वाम कर रहे हैं, लाइवलीहुड बना रहे हैं, सिटीज़ आर ग्रोइंग, पॉपुलेटेड हो रहे हैं, या एरियाज वहाँ ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है डी अर्बनाइजेशन, जब ऐसे सिटीज़ में फैसिलिटी कम पड़ जाता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, गंदा पानी, गंदा एरिया, स्लम्स में रहना, या प्रॉपर तरीके से नहीं रहना, एम्यूनिटीज़ एम्यूनिटीज़ मतलब जो भी आपको सुविधाएं दी जाती हैं उन पे उनकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है इनर सिटीज़ एरियाज़ में, वो होता है आपका डी अर्बनाइजेशन। प्लस इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन पॉपुलेटेड हो जाता है अर्बन एरियाज़, तो इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज श्रिंकिंग सिटीज़। श्रिंकिंग सिटीज़ मतलब सब साइड में छोटा होते जा रहा है, श्रिंक होते जा रहा है सिटीज़। उसके बाद इसमें एक रीज़न दिया गया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी हम लोग के पास डेप्रिवेशन होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जहाँ अर्बन एरियाज़ में या अर्बन लाइफ में प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया गया कि इंडिया का पॉपुलेशन 2015 ईयर तक 170 करोड़ हो जाएगा। इस समय क्या होगा, जब इतना पॉपुलेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो एरिया लिमिटेड एरिया है उसमें हम लोग जो डिपेंडेंट है फॉर फूड ग्रेन्स एंड अदर सच नेसेसरी, वो सब कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग गाँव में जो चलता है खेती वगैरह, उसके लिए भी एरिया है, उसको प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। देयरफॉर अच्छा रहेगा कि भारत सरकार हमारे विलेजेस के लिए कुछ करे, वहाँ स्टार्टअप्स आए, वहाँ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ लाएँ। वहाँ पे अगर कुछ काम करने का सुविधा होगा तो लोग वहाँ पे भी रहना पसंद करेंगे और वो एरियाज़ भी डेवलप करेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि दिस एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी इन विलेज विज ड्रेन अर्बनाइजेशन इज़ अ रीज़नेबल हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होगा कि अगर वहाँ पे कुछ स्टार्टअप या बिज़नेस खोलने का रूरल एरिया में या विलेजेस में मौका मिलता है तो विलेजेस का भी ग्रोथ होगा। पीपल क्यों माइग्रेट करेंगे रूरल से लेकर अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पे भी आउटकम्स आएगा। वहाँ पे क्या होगा, विलेजेस स्ट्रेंथन होगा, वहाँ पे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को फॉलो किया जाएगा और कल्चरल हेरिटेज भी हमारा बढ़ाते चला जाएगा इस केस में। नेक्स्ट, the reality is that the advances of telecommunication technology has connected rural community for remote working at a lower cost.
New age employment opportunity do not necessitate migration. The concept of rural sourcing involves from a lower cost of service or production for a corporate and economically superior option for employee in spite of lower wages due to lower cost of living. Thus one can see the light of optimism in the existence of village in the evolving paradigm of urbanization. However, it needs to be supplemented with enablers in terms of other urban attractions such as amenities and social infrastructure. The recent revolution in access to infrastructure such as electricity, water, connectivity in Indian villages in the recent past has already laid the foundation of a realization of Atmanirbhar Bhar with a reasonable time frame. तो आज के टाइम पे इसमें बताया जा रहा है कि टेली कम्युनिकेशन क्या होता है। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल योर टीवी हुआ, योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हुआ, वहाँ से हम देख सकते हैं कैसे ये लोग टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड, रूरल पीपल आर कनेक्टेड विथ टेक्नोलॉजी इवन स्टेइंग एट द रिमोटेस्ट एरिया मतलब सबसे सबसे लो प्रोविजन वाले गाँव में भी अगर वो रहते हैं तो कनेक्टेड है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है यानी जॉब देने का जो प्रक्रिया है वो उसको माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि पीपल रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आके ही जॉब ढूंढे। कुछ भगवान सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि रूरल एरिया में ही जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ताकि उनको माइग्रेट नहीं करना पड़े। पर दिक्कत ये है कि अगर रूरल एरिया में अगर कोई जॉब मिलेगा आपको तो क्या होगा, वहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ सर्विस होगा। मतलब क्या होगा कि आपको कम पैसे में काम करना होगा, कम लो क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा। इकोनॉमिकली वो इतना सुपीरियर नहीं रहेगा। जैसे आप शहर में आके काम कीजिएगा तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलेगा, ज़्यादा क्वालिटी ऑफ काम होगा यहाँ पे जो गाँव में नहीं हो सकता। वहाँ पे आपको कम पैसे में अपना गुजारा करना होगा, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा। पर देर इज़ अ लाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म, होप है कि विलेजेस का जो एग्जिस्टेंस है वो भी इवॉल्व करेगा लाइक अर्बनाइजेशन। उसमें भी प्रावधान सुविधा या फिर डेवलपमेंट या ग्रोथ देखा जाएगा। इट इज़ नीडेड टू बी सप्लीमेंटेड विद अनेबलर इन टर्म्स ऑफ अदर अर्बन अट्रैक्शन सच एज एमिनिटीज़ एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर गाँवों को डेवलप करना है, उनको कहीं ना कहीं इवॉल्व कराना है तो क्या करना होगा, हम लोग थोड़ा अर्बन एरियाज़ का जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर है सुंदर सुंदर हमारे अर्बन एरियाज़ में मतलब शहरों में रोड का सुविधा या रेलवे का सुविधा, इस तरह की अच्छी अच्छी सुविधा दी है वो हम लोग को विलेज में भी देना चाहिए ताकि वो इवॉल्व करे। एम्यूनिटी सुविधा देना होगा। इसके अलावा जो बेसिक नीड्स होता है गांव में यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब भी देना होगा। इसी से हमारा एक आत्मनिर्भर गांव का सही माध्यम में एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। इसके अलावा आप ये दो टॉपिक्स अपने से देखिएगा, राइवल ऑफ विलेज इंस्टीट्यूशंस एंड द विलेज एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है। You can just go and read through it. I would like to conclude the paragraph with this last point of development of Atmanirbhar Gaon. So the realization of Atmanirbhar Gaon requires conviction that the revolution of prosperity in India is possible only when villages lead the movement. According to Gandhi, the city are capable of taking care of themselves. It is village that must turn to. As Gandhi ji quoted, if the village perishes, India will perish too. It will be no more India's will. It is time to focus on villages. Thus, the policies and actions should be based on the principle of development of India is डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर गांव। तो इसमें बात बोला गया है कि अगर गांव का ही हम लोग डेवलपमेंट नहीं करते हैं, सारा पॉलिसी लाता सरकार, सुविधा लाता है, उसमें गांव को ही भूल जाते हैं तो हमारा देश ऐसे में डेवलप नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि सिटी के पीपल जो है वो अपना ध्यान रख लेंगे, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन गाँव को ध्यान देना सरकार को चाहिए या फिर लोगों को ध्यान देना चाहिए इन पर, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनको आइडिया नहीं चीज़ों को, उनको पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो उनको ध्यान देना ज़रूरी है। प्लस गांधी जी का ये भी कहना है कि अगर कहीं ना कहीं गांव हमारे देश का ख़त्म हो गया तो हमारा देश भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडियाज़ हार्ट लाइज इन इट्स विलेजेस और इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन द विलेजेस। जितना पॉलिसी एक्शंस आ रहा है उनको एक प्रिंसिपल पे होना चाहिए ताकि इंडिया का जब डेवलपमेंट हो तो आत्मनिर्भर गांव भी हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।